مرزا غالب کی غزل نمبر 2 کی بقیہ اشعار کی تشریح کا سلسلہ اب شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 5 ہے: میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ جو دبستہ ہے اس کے معنی ہیں مدرسہ یا اسکول یا مکتب یا ایسی جگہ جہاں پہ پڑھنے لکھنے کا یا استاد اور شاگرد جہاں پہ ہوں، استاد اور شاگرد کا تعلق ہو، تو وہ جگہ، اس جگہ کو دبستہ کہتے ہیں۔ چمن کہتے ہیں باغ کو۔ اچھا، باقی جو ہے وہ نالے جو ہے وہ لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے رونا دھونا، شور کرنا، غل کرنا، اور غزل خواں یعنی کہ ساتھ ساتھ غزلیں اچھا پڑھنے والے۔ اچھا، اب ہم اس شعر کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو غالب اپنے بارے میں کہتے ہیں، غالب پہلے تو خود کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اداس ہیں، وہ ناکام ہیں، وہ ایسے عاشق ہیں کہ جن کو ان کا محبوب نہیں ملا، وہ دکھی ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، وہ فراق میں ہیں۔ تو جب اس کیفیت میں وہ چمن میں جاتے ہیں، چمن میں جہاں پہ ہر طرف خوبصورتی ہے، جہاں پہ ہر طرف خوشحالی ہے، جہاں پہ ہر طرف پھول ہیں، ایک باغ ہے جہاں پہ زندگی ہے، وہاں پہ یہ اپنی ناکامی کے ساتھ، اپنے دکھی دل کے ساتھ، اپنے اس تکلیف والے دل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چمن پہ جاتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ دبستاں کھل گیا۔ کیسے کھل گیا؟ کیونکہ وہاں پہ موجود ہوتی ہیں بلبلیں۔ بلبل جو ہے وہ خود کو گل کا یعنی کہ پھول کا عاشق بیان کرتی ہے، وہ پھول کے عشق میں گرفتار ہوتی ہے اور اس پہ منڈلاتی ہے اور اپنا بسیرا چمن میں ہی رکھتی ہے، باغوں میں ہی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب سے قریب رہنا چاہتی ہے۔ تو جب بلبلیں وہاں پہ موجود ہیں اور جب یہ اپنی اس تکلیف اور ان غزلوں کے ساتھ، ان نوحوں کے ساتھ گئے کہ جو کہ ایک محبوب کے یاد میں ہیں، ایک ناکامی میں ہیں، ایسی فراق میں ہیں، جب انہوں نے وہ گنگنانا شروع کیے تو ان کو ایسا لگا کہ ان کے ساتھ ساتھ بلبلیں وہی نغمے گنگنا رہی ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے کہ کسی دبستان یعنی کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں استاد کوئی سبق پڑھتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے جو شاگرد ہیں وہ اس سبق کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ان کو بھی بالکل ایسا ہی لگا کہ جیسے کہ یہ اپنی غزلیں پڑھ رہے ہیں، اور اس غزل سے کو اپنے نمائندگی سمجھتے ہوئے بلبلوں نے بھی اسی غزل کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایسا گمان ہونے لگا کہ جیسے یہ دبستہ ہے اور یہاں پہ سارے ایک ہی جیسے سوچ کے لوگ ہیں، یعنی کہ وہی عاشقوں کی جماعت ہے کہ جو کہ فراق محبوب میں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں اور غزل خواں ہیں۔ اگلے شعر کی تشریح کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ہم محد ہیں، ہمارا کیش ہے ترکے رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئی۔ یہ بالکل جو غزل چل رہی ہے اس سے بالکل موضوع سے یہ ہٹ کے ایک شعر ہے، اور غزل کا یہ مزاج ہے کہ شاعر جو ہے وہ کسی بھی شعر میں کوئی بھی خیال پیش کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمیں خیال نظر آ رہا ہے وہ عشق مجازی جو ہے وہ ہمیں عشق حقیقی نظر آ رہا ہے۔ غزل کا موضوع جو ہے وہ عشق مجازی ہے، لیکن یہاں پہ یہ توحید کا ذکر کرتے ہیں اور خود کو موحد کہتے ہیں، توحید پہ ایمان رکھنے والا، اللہ کو ایک ماننے والا، اور یہ اس چیز کا اس طرح سے اظہار کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی اپنا سینہ ٹھوک کے یہ کہتا ہے کہ میں موحد ہوں، اور یہ اس چیز کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور جو کہ اچھی بات ہے۔ غالب کے یہاں ہمیں یہ فلسفہ مل رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے رب کو ایک مان لیا اور اس کو معبود مان لیا، تو پھر یہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں
जितने भी दीन हैं, जितने भी फ़िरक़े हैं, अगर इस चीज़ के ऊपर ईमान ले आए हम कि हम मुहिद हैं और हमें रस्में नहीं, तमाम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए, तो फिर जितनी भी मज़ाहिब हैं, दूसरे मज़ाहिब हैं, और जितने भी ऐसी रसूमात हैं कि जो कि शिर्क की तरफ तरगीब देती हैं, तो फिर उनकी हैसियत नहीं रहेगी। अगर हम उन रसूमात को तर्क करते रहेंगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम फ़िरक़े, तमाम मिल्लतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो उस जमात में शामिल होती रहेंगी कि ये कहती हैं कि वो मुहिद हैं और जो तौहीद पे ईमान रखने वाले हैं। तो जब हम रसूमात को तर्क करना शुरू कर देंगे, हम फ़ुज़ूल रसूमात की पैरवी में अपना वक्त ज़ाया किए बगैर हम तौहीद पे ही सिर्फ ईमान रखेंगे, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम मिल्लतें जो हैं वो फिर एक हो जाएंगी, और फिर ऐसा ये दिन भी आएगा कि फिर सिर्फ अल्लाह ही का नाम रहेगा और कोई नाम बाकी नहीं रहेगा। अगला शेर हम देखते हैं, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई। अच्छा, रंज कहते हैं तकलीफ़ को, दुख को, मुसीबत को, और खुगर कहते हैं आदी होने को। कि जो इंसान रंज का आदी हो या रंज का आदी हो जाए, तो फिर उसके लिए ऐसी ज़िंदगी, तकलीफ़ दे ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। मतलब अब ये ख़ुद को भी इस चीज़ में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जब हम देखते हैं तो इनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, और वो बार बार आ रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो कि मैं पिछली गज़ल के एक शेर में मैं उसका हवाला भी देना चाह रही थी। गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 1 ही था वो, कि इनकी ज़िंदगी में एक ये भी दुख था कि गालिब के यहाँ औलाद का सुख नहीं था। इनके यहाँ जो इनका ये शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। इस शेर में मैं इस चीज़ का भी हवाला एक आपको देना चाह रही थी कि उम्मीद होना, यानी कि इनके यहाँ औलाद की उम्मीद आना, और फिर जब वो उम्मीद जो है वो पूरी बर नहीं आना, पूरी ना होना। अगर औलाद हो रही है तो वो फौत हो जाया करती थी, और इन्होंने ये दुख कई बार इन्होंने इस दुख को झेला है, तो उनको अपनी औलाद की सूरत नज़र नहीं आ रही। तो हो सकता है कि ये जो शेर है, ये इन्होंने अपनी इस कैफियत का इजहार, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो रही, कोई सूरत नज़र नहीं आती, यानी कि औलाद की शक्ल में इनको कोई सूरत दिख नहीं रही। तो यहाँ मैंने जब इस शेर को इस तरह से सोचा, तो हो सकता है कि उस वक्त की जो तकलीफ़ थी वो अपने औलाद के इंतकाल का जो दुख और गम है, हो सकता है कि इन्होंने इस वक्त ये शेर कहा हो, और जो कि मुख्तलिफ़ कैफियत में लोगों की जो है वो मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है। अच्छा जी, तो इतनी तकलीफ़ें, इतनी जो रंज और इतनी गम है, हम अपने शेर की तरफ आते हैं। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गई। कि इतनी तकलीफ़ें, फाइनेंशियली इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली, इन्होंने अपने वैसे इमोशनली बड़े दुख और तकलीफ़ में रहे, इश्क भी किया इन्होंने, महबूब भी रखे इन्होंने। खैर, तो जो भी तकलीफ़ें इनको थी, जो भी दुख इनको थे, वो बार बार आ रहे थे। इस शेर में जो बात ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, जब हम किसी की मश्क करते हैं, दोहराते हैं, अब हम दुख को झेलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दुख को बार बार हम झेल रहे हैं, तो फिर ये हमारी आदत बन रहा है। और जो चीज़ हम बार बार करते हैं और हमारी आदत में आ जाता है, तो फिर हमें उसकी उस तकलीफ़ का हम उसके आदी हो जाते हैं, और हमें उसका एहसास नहीं होता। फिर हम पे वो कितनी ही दफ़ा आ जाए, फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
تو यहाँ पे ये रंज से आदी होने का बता रहे हैं कि जब बार बार रंज आता है तो फिर इंसान आदी हो जाता है, यानी कि वो अपना बता रहे हैं कि बार बार रंज और तकलीफ आने से मैं उसका आदी हो गया हूँ, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसा हो गई, अब मैं इतना आदी हो गया हूँ उन मुश्किलों को झेलने का कि मैं उन मुझ पे अब जित बड़ी से बड़ी भी मुश्किल आ रही है या आ जाएगी तो फिर मैं उनका मुकाबला कर लूँगा, मैं मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखते, मैं गम को झेलने का आदी हो गया हूँ, एक्सपर्ट हो गया हूँ। आगे हम इसका चलते हैं इसके मक्ते की तरफ। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरा हो गई। अब पिछला वाला अगर हम शेर देखें तो वो बहुत तकलीफ और दुख का है कि वो बार अपने गम और तकलीफ को, दुख को बयान कर रहे हैं कि वो बार बार इनकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो उसको झेल झेल के उसके आदी हो गए हैं। अब ये शेर में कहते हैं अपने मक्ते में कि तुम अगर अपने गमों को, दुखों को, तकलीफ़ों को इसी तरह से रोते रहोगे तो रोना धोना, अब यहाँ पे ये इस चीज़ का बयान कर रहे हैं कि लोग, तुम मुसलसल रोते रहोगे, तुम तकलीफ़ें अपनी बयान करते रहोगे, अपना ही दुख रोते रहोगे, तो अहले जहां, जहान के जो लोग हैं वो फिर ये रोना धोना जो है ये एक तरह से नहुसत की निशानी है, ये मनहूसियत की निशानी है। तो तुम ये देखोगे कि लोग तुमसे दूर होते चले जाएंगे, बस्तियां वीरान हो जाएंगी, यानी कि ऐसी तुम रोगे तो ऐसी नहुसत फैलाओगे कि लोग जो है वो चले जाएंगे, बस्तियां वीरान कर जाएंगे, फिर और जो है वो तुम्हारे रोने से सिर्फ तुम्हारा रोना ही रह जाएगा। तो यहाँ पे ये अपने रोने को खुद तक ही महदूद करना चाह रहे हैं और ये खुद को ही इस बात का सबक देना चाह रहे हैं कि रोना धोना जो है वो सिर्फ और सिर्फ नहुसत फैलाने का ही एक सबब है, और वजह क्या होगी कि लोग जो है वो कतराने लगेंगे, दूर होने लगेंगे और बस्तियां की बस्तियां जो है वो वीरान हो जाएंगी और सिर्फ और सिर्फ नहुसत बाकी रह जाएगी। तो फिर सबक ये है कि अपना गम, अपना दुख जो है वो अपने तक महदूद रखो। रोना धोना जो है वो किसी इंसान के सामने रोना धोना जो है वो किसी फ़ायदे का सबब नहीं है, बल्कि अगर रोया धोया जाए तो फिर वो रब के सामने ही रोना चाहिए। अपना गम, अपना दुख, अपनी तकलीफ़ जो है वो अपने अल्लाह से ही अगर बयान की जाएगी तो ही दिल को तसल्ली मिलेगी, तो ही सुकून और करार मिलेगा, तो ही लोगों में इज़्ज़त आपकी बढ़ेगी। अगर आपने अपना दुख किसी इंसान के सामने रखा तो फिर आप से लोग कतराना शुरू कर देंगे और फिर आपकी इज़्ज़त भी जो है वो कायम नहीं रहेगी, लोग जो है वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो यहाँ तक जो है वो हमारी गज़ल गालिब की मुकम्मल होती है, गज़ल नंबर 2। उम्मीद है कि ये दोनों गज़लें जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह से समझी होंगी। अब जो है हम अपने एक नए शायर के साथ उनकी गज़ल की तशरीह करेंगे और जल्द ही इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।